ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کشمیر پل انڈر پاس کے باقی ماندہ فنڈز منظور ہوں گے۔ حسیب شہید ہسپتال سمر آباد جنرل ہسپتال کی تکمیل ہوگی، اہم شاہراہیں بھی بنے گی، واسا کے منصوبوں کی سمری بھی تیار کر لی گئی۔ مکمل ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے سفارشات حکومت کو بھجوا دی گئی۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کشمیر پل انڈر پاس کے باقی ماندہ فنڈز منظور ہوں گے، حسیب شہید ہسپتال سمر آباد جنرل ہسپتال کی تکمیل ہوگی، اہم شاہراہیں بھی بنے گی، واسا کے منصوبوں کی سمری بھی تیار ہے، مکمل ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے سفارشات حکومت کو بھجوا دی گئی۔ بجٹ کی صورتحال کے بعد فیصل آباد منصوبے نامکمل تھے، مگر اب ایک بار پھر کشمیر پل انڈر پاس کے باقی ماندہ فنڈز حسیب شہید ہسپتال کو فعال کرنے اور سمر آباد جنرل ہسپتال کی تکمیل کے لیے 10 کروڑ روپے ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے امور MNA میاں فاروق حبیب نے بتایا کہ فیصل آباد کے ترقیاتی پیکج کے لیے بنائی گئی کمیٹی کھوڑیاں ٹو جڑاوالا اور KLM موٹر وے لنک سمیت اہم شاہراہیں بنانے، واسا کو چارج ہونے والی بجلی کا ٹیرف کم کرنے اور ڈومیسٹک ٹیرف میں اضافے کے لیے سفارشات بھجوا دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، جس میں فائنانس منسٹر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہوں گے، منسٹر ہاؤسنگ ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ تمام تر اپنی سفارشات تیار کر کے وزیر اعظم صاحب کی اپروول کروائیں گے اور فیصل آباد کو ایک بڑا ترقیاتی پیکج ملے گا۔ MNA میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے فیصل آباد ڈیولپمنٹ پیکج حتمی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ FDA سٹی میں انوویشن سٹی بنانے پر غور، DG FDA کہتے ہیں ایکس بلاک میں انوویشن سٹی پر منصوبہ بندی کا آغاز کیا جائے گا۔ FDA سٹی میں انوویشن سٹی بنانے پر غور، DG FDA کہتے ہیں کہ ایکس بلاک میں انوویشن سٹی پر منصوبہ بندی کا آغاز کیا جائے گا۔ DG FDA کی جانب سے FDA سٹی کو آباد کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ٹیکنو پارک کے آئیڈیا کے ساتھ FDA سٹی میں انوینشن سٹی بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انوینشن سٹی اپنی نوعیت کا منفرد اور جدید ٹیکسٹائل سے متعلقہ ہب ہوگا، جہاں فیڈ بیک میں لگنے والی جدید طرز کی صنعت کے فروغ کے لیے سروسز ہب بنے گا۔ ایک جگہ پہ ہاؤس ہو جائیں اور وہ سارے سروسز سیکٹر جو ہیں ہماری فیڈ میک اور علامہ اقبال انڈسٹریل زون کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور باقی آنے والے فیوچر میں بھی جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایکٹیویٹی اور ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ وہیں سے جنریٹ ہوگی، اور تمام انٹرپرینیورشپ کا ہب بن جائے گا یہ انوویشن سٹی۔ کئی کنال سے زائد اراضی پر پلازے کی تعمیر کر کے انڈسٹری سے متعلق فرمز کو کاروبار کا موقع دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اہم معاملے کی بات کریں گے۔ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کے عملے کا خون کی بوتلیں خرد برد کرنے کا انکشاف ہوا ہے، مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی، جبکہ تیمارداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ الائیڈ ہسپتال فیصل آباد کے عملے کا خون کی بوتلیں خرد برد کرنے کا انکشاف ہوا ہے، مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں، جبکہ تیمارداروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ الائیڈ ہسپتال کے بلڈ بینک میں خون کی بوتلیں خرد برد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خون کی بوتلیں نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ شہری نے خون کی بوتلیں واپس نہ ملنے پر درخواست انتظامیہ کو جمع کرا دی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ اس کی ہمشیرہ برن یونٹ میں زیر علاج ہے، اسے آئے روز خون کی بوتلیں لگتی ہیں، جس کا ایڈوانس دے دیا گیا ہے۔ عملے سے خون کی بوتلیں بارے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بوتلیں ضائع ہو چکی ہیں۔ عملے کی جانب سے 2 مرتبہ ایسا کرنے پر احتجاج کیا تو عملے نے 200 ml خون کی بوتل دے کر ٹرخا دیا۔ متاثرین نے ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انچارج بلڈ بینک ڈاکٹر حماد کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری کی جانب سے درخواست موصول ہو چکی ہے، واقعہ کی انکوائری کر رہے ہیں۔ انچارج بلڈ بینک ڈاکٹر حماد کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری سے زیادتی ثابت ہونے پر متعلقہ ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چنیوٹ ریلوے انتظامیہ کی انوکھی منطق، شہر کے اہم مقامات پر ریلوے پھاٹک بنانے کی بجائے ہیوی ٹریفک کے لیے گزرنا بند کر دیا۔ انتظامیہ نے سلارہ روڈ اور عمر روڈ سمیت متعدد ریلوے کراسنگ پر بیریئرز لگا دیے۔ چنیوٹ ریلوے انتظامیہ کی انوکھی منطق، شہر کے اہم مقامات پر ریلوے پھاٹک بنانے کی بجائے ہیوی ٹریفک کا گزرنا بند کر دیا۔ انتظامیہ نے سلارہ روڈ اور عمر روڈ سمیت متعدد ریلوے کراسنگ پر بیریئر لگا دیے۔ چنیوٹ ریلوے حکام کا انوکھا کارنامہ، سلارہ روڈ، عمر روڈ اور محلہ مصطفیٰ آباد سمیت شہر کے متعدد مقامات پر ریلوے پھاٹک بنانے کی بجائے پولز لگا دیے۔ بیریئر سے ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہونے لگی۔ اس سے ہم اہل دیہات کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ لے کر یا دوسری کوئی بھی ہیوی جو ہے وہ چیزیں لے کر، چارہ وغیرہ لے کر شہر جب ہمیں آنا پڑتا ہے، تو اگر پراپر یہاں پہ پھاٹک کا نظام ہو جسے بند اور کھولا جا سکے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ سلارہ روڈ اور عمر روڈ پر ہیوی ٹریفک کی بندش سے دیہی علاقوں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریلوے انتظامیہ نے پولز لگا کر معاملات زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ پھاٹک کی وجہ سے، پھاٹک بنانے کی بجائے یہاں بیریئر لگا دیے گئے ہیں، جہاں اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، موٹر سائیکل، کاریں وغیرہ، وہ ان سے زیادہ جناب یہاں اموات ہوئی ہیں۔
हैवी ट्रैफिक से तो ऐसी कोई हमने आज तक नहीं सुनी। शहरियों ने आला हुकाम से पोल्स हटाकर रेलवे फाटक बनाने का मुतालबा किया है ताकि गुजरने में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोड़। अब बात करेंगे 24 न्यूज़ की बंदिश के मामले की, जिसके खिलाफ सहाफ़ी, वकला, ताजर और सियासी रहनुमा मैदान में आ गए। प्रेस क्लब से जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली गई। मुजाहिदीन ने 24 न्यूज़ का लाइसेंस फिल फॉर बहाल करने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद प्रेस क्लब, फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अरकान और सनती व तजारती तंजीमों के रहनुमाओं ने पेमरा की यकतरफा कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। मुजाहरीन ने 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब जफर डोगर का कहना था कि 24 न्यूज के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। सहाफियों को इससे बड़े एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। गैर कानूनी तौर पर यकतरफा कार्रवाई करते हुए पेमरा ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया जाए। सदर फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट GA तनवीर ने पेमरा के इकदाम की मजम्मत की। मैं ये कहना चाहूंगा खान साहब के लिए कि हर्फ नाशनास जहां लफ्ज फहम हो, क्यों ज़ौक़े शेर दे के तमाशा किया मुझे, और इंशाअल्लाह 24 को जो है ये जो जंजीरें डाली गई हैं इनसे रिहाई मिलेगी। ग्रुप लीडर शाहद अली ने भी यकतरफा कार्रवाई पर पेमरा को आड़े हाथों लिया। 24 की बंदिश गैर कानूनी है और इस पर साफी बरादरी सरापा एहतजाज है। सेक्रेटरी फैसलाबाद प्रेस क्लब अली इशफाक हाशमी ने पेमरा के इकदाम को जालमाना करार देते हुए 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा किया। अगर आप इक़्तिदार अपना पूरा करना चाहते हैं तो अवाम के मसाइल को सुनिए और अवाम के मसाइल लेकर उसकी निशानदेही करने वाले मीडिया को अज़हार राय की आज़ादी का मौका दी। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने कहा कि 24 न्यूज को अवामी मसाइल उजागर करने और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। अगर लोगों के साथ जुल्म होता है और उस जुल्म को आप आगे सामने लेके आते हैं तो मजलूम का साथ देना सबसे बड़ा जहाद होता है। तो मैं समझता हूं कि 24 ने आज तक इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं की। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सेक्रेटरी महमूद आवान ने भी 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की मजम्मत की। को जो भी जिम्मेदारान उनका तयन किया है, आपकी मदद की है, तो हम जो है वो इस पेमरा के इस कदम का इक़दाम का जो है वो मजम्मत करते हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला असलम भल्ली ने भी पेमरा के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की। जब मीडिया की आवाज़ दबाएंगे और आपके सामने हकीकत सुनने का हौसला आप में नहीं होगा तो फिर इसका यकीनन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। चेयरमैन पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने कहा कि 24 न्यूज को मजदूरों, ताजरों और सनतकारों के मसाइल उजागर करने पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। पेमरा का यकतरफा और जालमाना फैसला था जिसके खिलाफ एहतजाज के लिए आज ना सिर्फ फैसलाबाद के सहाफ़ी बरादरी आई है बल्कि फैसलाबाद के मजहबी रहनुमा, फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद के सनतकार, हर मकतबा फिक्र से लोग आए हैं। जमात इस्लामी फैसलाबाद के नायब अमीर राना अदनान ने भी पेमरा को अड़े हाथों लिया। देखें खान साहब, जब आपकी करप्शन बेनकाब होगी तो आप फंसेंगे और इंशाल्लाह ये ओछे हथकंडे आपके काम नहीं आएंगे। अंजुमन तलबा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब सियालवी ने भी 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की मजम्मत की। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, तलबा बरादरी आपके साथ है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हम इस हवाले से हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। खातून सहाफ़ी शाइस्ता शेख ने भी ख्यालात का इजहार किया। हकाइक को मंजर आम पर लाते, लेकिन हकाइक जो है वो बड़े तलक होते हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हम अपना जो है जो हमने अहद किया होता है उसको फुलफिल करते हैं। हकाइक जो चाहे वो तलक ही सही हम इन मंजर आम पर लाते हैं। सहाफ़ियों, सनती व तजारती तंजीमों के अहदेदारों, डिस्ट्रिक्ट बार और सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत हर शोबाहे जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की और लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास और मोहम्मद वकास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़ेंगे, मौसम से मुतालिक आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद में बादल बरस पड़े, ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। स्याह बादलों की वजह से दिन में रात हो गई। बारिश से बिजली की फराहमी भी शदीद मुतासिर हुई। शदीद गर्मी के बाद आंधी ने फैसलाबाद का रुख किया। झक्कड़ चले तो साथ ही सुरमई बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाया। बादल गरजे, चमके और फिर बरस पड़े। तेज हवाओं और रिमझिम से गर्मी को ब्रेक लग गई। तेज हवाओं और बारिश से फैसलाबाद का तरसीली निजाम भी मुतासर हुआ। 47 फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर देही और शहरी इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी रही।
आंधी और बारिश के सामने फेस्को के फीडर्स बेबस हो गए, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद के चक नंबर 216 रेबे मोहम्मद वाला के मकीन बिजली बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता रोज 4 रोज से बिजली बंद है। फेस्को अफसरान और अमले ने चुप साध रखी है, ये रिपोर्ट देखिए। जड़ावाला रोड से मुलीका चक नंबर 216 रेबे मोहम्मद वाला में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली ऐसे गई कि 4 रोज बाद भी वापस न आई। अहले इलाका ने फेस्को हुक्काम और अमले की गफलत पर शदीद एहतजाज किया। दिहाड़ी रात कमने तो कोई बत्ती होंदी कोई सया जांदा नहीं साढ़े को, लिहाजा तुस अगर बिजली नहीं सही करनी तुसी खंबे पट लो, तारा पट लो, ताकि सानू पता लग जाए कि बिजली है कोई नहीं, असी अपना गुजारा कर लिए। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई न हुई। शहरी शदीद गर्मी से निढाल हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि फेस्को हुकाम ने ताहाल बिजली की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए। SDO बिजली बहाल करने और ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है। तो पूरी होती नहीं, उनको 2 लाख कहाँ से करके दें? अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम, अब तो कुछ आदमी हैं, हम पूरा मल्ला लेके रोड पे जाएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। इंसान तो इंसान रहेगा, जानवर प्यास से मर रहे हैं, उनको चारा काटने के लिए वो बत्ती नहीं है, उसकी परेशानी है। बच्चों का हाल देखो ये क्या हो गया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि CEO फेस्को अमले की गफलत और SDO के खिलाफ फौरी नोटिस लें और बिजली बहाल करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। उधर अहमदपुर सियाल के इलाके चक 2/2L में 4 रोज से बिजली गायब है। फेस्को 4 दिन के बाद भी खराब ट्रांसफार्मर को ठीक ना करा सकी। रिहायशी सरापा एहतजाज बन गए। वापडा हुकाम की गफलत के बायस जनाब नगर के मकीन बिजली से महरूम है। वापडा अफसरान के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अहमदपुर सियाल के चक 2/2L में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने पर मकीन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतादिद बार फेस्को सब डिवीजन गढ़ महाराजा को इतला दी लेकिन सुनवाई न हो सकी। फेस्को एहलकारों की जानिब से ट्रांसफार्मर ठीक करने के बदले पैसों का तकाजा किया जा रहा है। जनाब नगर के इलाके खचियां, आसमाबाद, दारुल हसन, नासराबाद, शकूराबाद और दारुल यमन के मकीनों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जायद बिल वसूल करने के बावजूद वापडा एहलकार बिजली की खराबी दूर नहीं कर सके। अक्सर इलाकों के सिर्फ जंपर्स और ट्रांसफार्मर्स खराब हैं, लेकिन लाइन स्टाफ की सुस्ती की वजह से अवाम बिजली से महरूम हो गए हैं। फेस्को जंग की गफलत के बायस मोहल्ला इलाहाबाद के मकीनों पर मौत के साए मंडलाने लगे। मॉनसून अलर्ट के बाद भी बिजली के लटकते तारों और टेढ़े खंभों को दुरुस्त नहीं किया जा सका। बारिशों की सूरत में जानी और माली नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। फेस्को जंग की बेहिसी के बाइस मोहल्ला इलाहाबाद के मकीन खौफ रास में मुब्तला हैं। मॉनसून अलर्ट के बाद भी बिजली की लटकती तारों और टेढ़े खंभों की दुरुस्ती का अमल मुकम्मल न किया जा सका, जिसके बाइस बारिशों की सूरत में जानी और माली नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। जी सर, ये आपके सामने ये सब तारें लटकी हुई हैं और इधर मॉनसून की हवाएं, बारिशें और जानी माल का खतरा भी हो सकता है। ये हुकूमत से गुजारिश है कि ये हमारा जो सिलसिला है इसको जल्द से जल्द हल किया। इलाका में सीवरेज मसाइल के बाइस भी अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि चंद मिलीलीटर बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल बंद हो जाता है, जिससे गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। बहुत अरसा हो गया यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा वैसा, यानी कि पानी का, अब बारिशें होंगी, पानी का बहुत ज्यादा मसला है, हर गली में पानी रहता है। अहले इलाका ने फेस्को हुकाम और जिले इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ हवैज खान, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग खराब हो गई। शुगर मिल्स लगने की वजह से तानलेवाला समेत कॉटन की बेल्ट बुरी तरह मुतासिर हुई। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल कम होने के खदशात पैदा होने लगे। रवां वर्ष 60 लाख एकड़ की जगह सिर्फ 40 लाख एकड़ कपास काश्त हुई है, जिस वजह से कपास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ह है कि कपास का बरामदात में 60-70% तक शेयर होता है। कॉटन जो है ये 60% जो हमारी बरामदात है वो कॉटन की वजह से होती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये रॉ मटीरियल मुहैया करती है। ज़राई माहिरीन कहते हैं पहले टेक्सटाइल सेक्टर को खाम माल आसानी से मुहैया हो जाता था, अब इसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना था कि शुगर मिल्स और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से और जोनिंग ना होने की वजह से या शुगर मिल्स जो है वो कॉटन वाले एरिया में जाने की वजह से, तो ये फसल जो है इसकी जो है ना प्रोडक्शन जो है या पैदावार और इसकी जो काश्त है वो कम हो गई है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी अमदादी कीमत तय करनी बहुत जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41,
फैसलाबाद में कोरोना के बायस हुकूमत की जानिब से तमाम शोबों को रिलीफ फराहम किया गया, जबकि दूसरी जानिब किसानों को आबियाना की फीस दोगुना करके फौरी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। शोबे ज़राअत से वाबस्ता अफराद में परेशानी की लहर दौड़ गई। हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल न होने से ज़राअत से वाबस्ता अफराद मुश्किलात का शिकार होने लगे। साबिक कैबिनेट डॉक्टर निसार अहमद जट ने आबियाना बढ़ाने पर शदीद तनकीद की है। हमें अफसोस इस बात का यह है कि जब हमने नंबरदारान साहिबान से ये बात पूछी कि जी आबियाना आपको किसने कहा है, किसके नोटिफिकेशन से आप ये वसूल कर रहे हैं, तो हमें जवाब आया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कहा गया कि आपने ये डबल से ट्रिपल वसूल करना है। ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत को लाजमी तौर पर आबियाना कम करना होगा। रहनुमा PTI डॉक्टर निसार अहमद जट का कहना है कि इस इशू के मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करेंगे ताकि किसानों की मुश्किलात कम की जा सके। उस्मान बुज़दार साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बुज़दार साहब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में महंगाई का कंट्रोल करना, जो हमारे सीड के हवाले से, हमारी खाद के हवाले से आप जो इतने मामला को लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस बात का नोटिस ज़रूर लें कि ये किस फोरम ने आबियाना बढ़ाया है और उस पर नोटिफिकेशन जो है वो मंजर आम पर क्यों नहीं लेकर आए। शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि एक जानिब हुकूमत ज़राअत को तरक्की देना चाहती है, मगर दूसरी तरफ टैक्सेस में कमी की बजाय इजाफा हैरान कुन अमल है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टिड्डी दल से मुतालिक आपको अपडेट करें। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंसदादे टिड्डी दल के मौजू पर एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अजीम, चेयरमैन शुबा एंटोमोलॉजी डॉक्टर मंसूरुल हसन, डॉक्टर आमिर रसूल ने काश्तकारों को टिड्डी दल से बचाव बारे आगाही दी। ये रिपोर्ट देखें। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि टिड्डी दल माजी के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद टिड्डी दल ने रवां साल ज्यादा नुकसान किया। अब जो टिड्डी दल आ रहा है और जो स्वाम आ रहे हैं, ये इस तरह के पहले हमने नहीं देखे। ये बहुत बड़ी तादाद में, और जो कहते हैं ना कि ये असल जो इस पे असरात हुए हैं, कि नंबर क्यों बढ़ा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो पूरी दुनिया में शोर है कि जी मौसमियाती जो तब्दीली आई है उसकी वजह से। चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अजीम का कहना था कि हुकूमत ने टिड्डी दल के हमले को भी इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल के तौर पर डील किया। एक्शन हमने लिए हैं, तो जो यहाँ रियलाइजेशन है ये बहुत अर्ली हुई है, बहुत अर्ली महसूस किया गया कि यूनिवर्सिटी को एक लीडिंग रोल प्ले करना है, और ये कर रही है। ज़राई माहिर डॉक्टर आमिर रसूल का कहना था कि मादा टिड्डी दल 1000 तक अंडे दे सकती है। टिड्डी दल के अंडे देने वाली जगहों को घर पे या हल चलाकर तल्फ किया जा सकता है। बैठे हुए झुंड को आग लगाकर भी तल्फ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इजी वे है, क्योंकि इमोबाइल हैं एग्स, हमें इनको सिर्फ लोकेट करना पड़ेगा। जैसे आपको पीछे मैंने दिखाया कि सुराख नज़र आते हैं, और एक एक स्क्वायर मीटर में हज़ारों सुराख आपको मिलेंगे, और अगर लोकेट कर लें, प्रॉपर सर्वेलेंस हो, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमें इसके पीछे भागने की इतनी ज़रूरत नहीं है। माहिरीन ने बताया कि तलेर, तीतर, कौवे और दीगर परिंदे भी टिड्डी दल को खा जाते हैं। बायोपेस्टिसाइड से भी टिड्डी दल को कंट्रोल किया जा सकता है। टिड्डी दल फसल पर बैठ जाए तो तजवीज़ करदा स्प्रे से भी मारा जा सकता है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चारों जिला के महकमे माल से मुतल्लिका उमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर ज़राए वाजिद अली अयूब खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल रबी, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बखारी, उमर मकबूल, फैसल सुल्तान, उसामा शारवान नियाजी, इम्तियाज बेग, डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू मलिक राशिद के अलावा दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर्स को रेवेन्यू अमूर से मुतालिक डायरेक्टरी को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी को वागुजार और ज़राई जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ महकमों की इमारतों का स्टेटस चेक किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि रेवेन्यू अमूर से मुतल्लिका चेक लिस्ट बनाकर उसके मुताबिक टास्क की अंजाम दही की जाए। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन से मुतल्लिका पटवारियों से मीटिंग करके रिकॉर्ड और रेवेन्यू से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाए। कमिश्नर ने कहा कि 2 दिन बाद दोबारा इजलास मुनक्किद करके कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला उसामा शाहरून नियाजी ने ड्यूटी से गफलत बरतने वाले 8 पटवारियों को मुअत्तल कर दिया। इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला उसामा शाहरून ने 8 पटवारियों को नाकिस कारकर्दगी और शहरियों की शिकायत पर मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वाले पटवारियों में मोहम्मद शकील, मुमताज हुसैन, नासिर अली बलोच, अजीज अहमद, मोहम्मद इसहाक, गुलाम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इकबाल
और मोहम्मद सईद शामिल हैं। एसी उसामा शाहरों ने मुअत्तल होने वाले पटवारियों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। एसी ने कहा कि ड्यूटी में गफलत बरतने वाले पटवारियों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिन्योट में कमरों का काल पड़ गया। इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच और ट्रांसपोर्ट ब्रांच के दफ्तरी रिकॉर्ड खुले आसमान तले रख दिया गया। कमरों की कमी के बायस अहम रिकॉर्ड जाया होने का खदशा बढ़ गया। ये रिपोर्ट देखें। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट अपने ही दफ्तर की हालत ना बदल सके। कमरों की कमी हुई तो सरकारी अफसरान और क्लर्कों ने दफ्तरी फाइलों समेत कीमती रिकॉर्ड खुले आसमान तले रख दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच और ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड जाया होने का खदशा बढ़ गया है। शहरी कमरों के बाहर पड़ी फाइलों को देखकर जिला इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। शहरियों ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से कमरों की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया है ताकि कीमती रिकॉर्ड को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। साबिक दौरे हुकूमत में खवातीन के हुकूक के लिए बनाया गया इदारा पंजाब कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन 1 साल से गैर फाल है। खवातीन पर तशद्दुद केसेस में इजाफा हो गया है। मजीद कौन कौन से काम रुक चुके हैं, शाहिदा परवीन अपनी रिपोर्ट में बताएंगी। साबिक दौरे हुकूमत में खवातीन के हकूक के लिए पंजाब कमीशन स्टेट्स ऑफ विमेन के नाम से अदारा बनाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और मदद फ्राहम करना था। लेकिन इंतजामिया के अदम तोजीह के बायस 1 साल से ये इदारा गैर फाल है। सीडो की रिपोर्टिंग है जो कि हमने एक खवातीन पे तशद्दुद के हवाले से इंटरनेशनल माहिदा रेटिफाई किया हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग भी ज़रूर मुतासिर होगी कि पंजाब के अंदर इतनी देर खवातीन से मुतल्लिक जो हुकूमती इदारा था वो गैर फाल रहा है। BCSW की साबिक बोर्ड मेंबर शाजिया जॉर्ज का कहना था कि ये इदारा 6 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जिनमें खवातीन को शेल्टर फ्राहम करना, जिनसी ज़्यादती या तशद्दुद ज़दा खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना, तशद्दुद ज़दा खवातीन के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना, माजूर खवातीन की मदद करना समेत दीगर अहम काम शामिल थे। लेकिन कमीशन गैर फाल होने से तमाम प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। अगर उन पे तशद्दुद हुआ है तो वो कहाँ पे जाएं या किन इदारों से रब्ता करें, और फिर अगर उनको हैरेसमेंट हुई है किसी किस्म की या काम की जगह पे किसी किस्म की भी नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है, या फिर अब नॉर्मली आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ख़वातीन के किसी भी किस्म के इश्यूज़ जो थे वो वहाँ पे शेयर किए जा सकते थे। PCSW की साबिक बोर्ड मेंबर का कहना था कि अगर हुकूमत तवज्जो दे तो ये इदारा दोबारा से मजलूम खवातीन की आवाज़ बन सकता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शाहिदा परवीन, फैसलाबाद। झंग की धजी रोड की हालत न बदल सकी। तमाम बाजारों को जाने वाली सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। अवामी नुमाइंदों ने भी खस्ता हाल सड़क को नजरअंदाज कर दिया। झंग के गुंजान आबाद इलाके सुल्तान वाला महल्ला से मुलिका धजी रोड की हालत बदल न सकी। 5 से ज्यादा महल्ले और बाजारों को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ताजिर और मकामी अफराद टूटी सड़क के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। तहम इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार रोड की हालत रोज बरोज अबतर होती चली जा रही है। अवामी नुमाइंदों ने धजी रोड की टूट फूट को नजरअंदाज कर दिया है। गुजरना मुश्किल है, यहाँ से महल्लेदार रहने वाले परेशान हुए पड़े हैं। सड़क सारी टूटी पड़ी, काफी अरसे से बचपन से देखे जा रहा है यहाँ से टूटी हुई है सड़क। शहरियों ने हुकूमत से सड़क की तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट ने ईद कुर्बा पर अलाइशे ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए। बल्दी अफसरान ने हथरेडियाँ, कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, लोडर रिक्शे, बैग्स, मास्क और टोकरियों की खरीदारी के लिए सिफारिशात हुकूमत को भेज दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट ने ईद कुर्बान से कबल सफाई समेत अलाइशे ठिकाने लगाने के लिए इंतजामात शुरू कर दिए। शहर में 150 से ज्यादा मुलाजमीन सफाई और अलाइशे को ठिकाने लगाने के लिए ड्यूटी सर अंजाम देंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, लोडर रिक्शे, बैग्स, शॉपर्स, मास्क और हथ रेडियां समेत दीगर सामान की खरीदारी के लिए हुकूमत को सिफारिशात भेज दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़ेरे सदारत इजलास ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों के क़याम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मवेशी मंडियों के लिए जगहों की निशानदही करने की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मवेशी मंडियां शहरी हदूद में नहीं लगेंगी। मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा, जबकि ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में लोगों को SOPs पर अमल दरामद कराने का पाबंद बनाने के लिए टाइगर फोर्स के रजाकारों की खिदमात हासिल की जाएंगी।
डिवीजन भर में कोरोना के हमले जारी हैं। जिला फैसलाबाद में मुतासर अफराद की तादाद 5026 हो गई। उधर चिन्योट में 24 घंटों के दौरान 7 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आया। फैसलाबाद जिला भर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5026 हो गई है। इसके अलावा वायरस के बायस 172 मरीज जाम बहक भी हो चुके हैं। चिन्योट जिला में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 216 हो गई। 70 अफराद ने खुद को घर में करंटीना किया हुआ है, जबकि 6 अफराद आइसोलेशन सेंटर में जेर इलाज है। महकमा सेहत के मुताबिक जिले में 141 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जंग जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 332 तक जा पहुंची, जबकि अब तक 246 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक जिले भर में 6 अफराद वायरस के बायस जाम बहक हुए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का अनोखा कारनामा, हश्तुम के खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। तलबा को अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने की हिदायत की गई। खाली रिजल्ट कार्ड पर बासानी बोगस नतीजा प्रिंट करवाया जा सकता है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत हार्ड कॉपी में तलबा को हश्तम के रिजल्ट कार्ड तालीमी इदारों में भिजवाने की बजाय रिजल्ट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पैक की वेबसाइट पर फराहम कर दी गई। तलबा को कहा गया कि वो अपना रोल नंबर वेबसाइट पर एंटर करके अपना रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करें और इसे प्रिंट करवा लें।